So as we know that we can purchase structured as well as unstructured data in Hadoop. Hive is one of the tools or an infrastructure tool where we can process that structured data. It resides on top of Hadoop to summarize big data and makes querying and analyzing easy. So using Hive, we can analyze the data, query the data, just like we do some queries in SQL. So we can do queries in Hive. It's very similar to SQL. It is known as HQL, Hive Query Language. So initially Hive was developed by none other than Facebook. Later Facebook donated this software or Hive to the Apache Software Foundation, and that's why it is now open source. And further Apache Software Foundation took it and developed it and made it open source. It is used by different companies. For example, Amazon uses it for Amazon Elastic MapReduce. EMR जिसको बोलते हैं Elastic MapReduce, EMR. Amazon AWS EMR एक है. So that is for Amazon Elastic MapReduce. And there are other companies also. There are like many companies to analyze structured data. They use Hive because Hive is really good for large set of data, but not a small chunk of data. And it is best for stagnant data and not online transaction. OLTP data के लिए this is not a good platform. It is only good for OLAP. So Hive is not a relational database. It is not like your SQL. It is just like it, but it is not exactly like SQL. They both are completely different. So it is not a relational database. However, it is a data warehouse. Okay. It is not a design for OLTP. So this is not an OLTP. Okay. And this is not a language for real-time queries or row level updates. Row level update means in between the data you're trying to update the data. So that is not accepted in Hive. You can do it, but not recommended. वाला चीज है ये. ठीक है. And real-time data like something which is continuously coming. The data is in a continuous flow. उस data के लिए Hive is not a good thing. Apart from Hive, you can do you can use Kafka or you can use Spark. Either of them you can use. Okay. Features of Hive: it stores schema in a database and process data into HDFS. So it will store your schema in the sense ID, name, first name, last name, आधार कार्ड नंबर. तो ये हो गया schema, the column names. ठीक है. तो ये schema है. तो schema इसके database में रहेगा. However, जो data है वो HDFS में रहेगा. Okay. It is designed for OLAP and then it provides SQL type language. So something like SQL that we can write. Anand. Anand, this is your phone. Okay, it provides SQL like query. Okay, that is called Hive Query Language or HQL. It is familiar, fast, scalable, and extensible. So it is a wonderful platform to use.
It is also capable of analyzing large set of data stored in HDFS. It allows you different other features. I can tell you, it allows you different storage path. You can store your database. You can store your data into uh, HDFS, and you can store your data into as a plain text, as a RC file, encrypted file. You can store it in HBase. So you can do all these things. Okay. Now we'll see what is Hive, how to log into Hive. So what you can do is you can just go to your Cloudera VM, and once it is on, just type Hive and enter. You will enter your Hive screen. Okay. So some difference between Hive and SQL. Hive is OLAP. Okay. That is online analytical processing system, and SQL is OLTP, that is online transaction processing system. Hive can handle data up to zettabyte. SQL can handle data up to terabytes. Hive is schema on read. SQL is schema on write. So schema, schema on read and schema on write. Okay. So Hive is schema on read and SQL is schema on write. और difference क्या है यहाँ पे? So simple difference I'll tell you. ये दोनों में क्या अंतर है? When we write an SQL statement, we write it select. पहले we create a database, then we create a table, then we insert data. Okay. Here things are not like this. Here we create. तो यहाँ पे डेटा हमारे पास है नहीं, ठीक है. In this case we don't have the data, so we will insert the data. वही Hive पे we will create a database, first, then we will create table, and here we do not insert data, we have stored data. We have, and data will be in data can be in any format. Let's say CSV, so it can be 1 comma any name like A or Aman, 2 comma so this is how a CSV form of data, comma separated data. Okay, this is comma separated. It can be in this format, it can be in compressed file, it can be in Avro, Parquet, or sequence. Any type of encryption can be there on this data. Okay. So let's check the data type. So data type जैसे हमारे SQL में data type होता है int, char, date and time, blah blah blah. So same way we have different types of data, different data types in Hive query language. Column type, literals type, null type and complex data. ठीक है, ये सारे होते हैं.
कॉलम टाइप में आता है हमारा इसमें कैसे दिखाऊं मैं, so column type में we will have tiny, tiny int, नीचे नीचे लिखता हूँ मैं, अरे tiny int है, then we'll have small int, then we have int, then we have big int. Okay, this is what we have. Now इनको डिनोट कैसे करते हैं, तो इनको डिनोट हम करेंगे ऐसे 10 y लगा दो, ठीक है, फिर यहाँ पे पोस्टिक में आ जाएगा s, 10 s कर दो, देन यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है बिकॉज ये इंट है, तो इंट इज इंटीजर नथिंग, बिग इंट में l लगा दो लॉन्ग, ऐसे डिनोट होता है. सो बिग इंट इज लाइक really big number by the definition. Small int, tiny int is like small numbers if you want to. Otherwise, you have integers. You can use it for everything. Okay. Now, in column type, we also have string type. String type will have string. May we have varchar, we have char, we have string. ठीक है. varchar में हम सेव कर सकते हैं कितना 1 to 1 से लेके 6 5 समथिंग समथिंग समथिंग, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है. 65,000 55 65,000 65,000 65,355. yep. तो ये हो गया वैर कैर का, इतना कैरेक्टर वो ले लेगा. कैर इज ओनली 255 एंड स्ट्रिंग इज, स्ट्रिंग का कोई वैल्यू नहीं है, एनीथिंग एनीथिंग बिटवीन single quote or double quote, whatever you write it will be there. Okay, ये हो गए. अब प्रिमिटिव है, न्यूमेरिक के अंदर में आता है दो आता है, एक हो गया इंटीग्रल, इसको बताऊं कैसे, ऐसे तो हो गया ना, छोड़ दो, यहीं से बताता हूँ. कॉलम स्ट्रिंग हो गया, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में भी आप टाइम स्टैम्प, नीचे लिखता हूँ टाइम स्टैम्प है, डेट है, और ये उतना यूज नहीं करते हैं बट ये है. टाइम स्टैम्प और डेट ही सबसे ज्यादा यूज होता है मोस्टली. टाइम स्टैम्प टू व्हेन वी हैव सम डेटा, टाइम स्टैम्प के हिसाब से वी कैन इंपोर्ट द डेटा, सो इसलिए वी यूज टाइम स्टैम्प. सो ये हो गया एक, कॉलम, दो, तीन हो गया स्ट्रिंग टाइप. मिसलेनियस में है बूलियन, ट्रू फॉल्स, बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, और एक है बाइनरी. बाइनरी इज फॉर बाइनरी कैलकुलेशन. तो भी हम लोगों ने न्यूमेरिक कर लिया, और एक बच गया न्यूमेरिक के अंदर में, कॉलम के अंदर में एक बचा हुआ है, वो है फ्लोट.
फ्लोटिंग, फ्लोटिंग के अंदर में आता है तीन, एक है फ्लोट, फ्लोट इज फॉर डेसिमल, देन यू हैव डबल जिसका वैल्यू थोड़ा सा छोटा है फ्लोट से, और उसके बाद है डेसिमल। तो ये है डेटा टाइप, कॉलम के, फ्लोट के, न्यूमेरिक में कॉलम है और फ्लोटिंग है। उसके बाद आ गया डेट एंड टाइम जिसमें टाइम स्टैम्प है, डेट है, इंटरवल है। उसके बाद स्ट्रिंग में है वैर कैर, कैर एंड स्ट्रिंग, एंड देन मिसलेनियस में है बुलियन। सो यहाँ पे ये याद रखना कि फ्लोट जो है फ्लोट 4 बाइट, float is 4 byte, double is 8 byte, then timestamp is as YYYY, MM, DD, HH, MM, SS। उसके बाद जो भी सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स है and all it will come. Date will be similar, YYY, MM, MM, DD. Boolean is true false. अरे तो ये बाइट एरे जो बाइनरी है ये मैंने कभी यूज किया नहीं है, और मैंने वैसे प्रैक्टिकल यूज तो देखा नहीं, बिकॉज इसके ऊपर जो भी है उसी में 90% और मोर देन 90% काम हो जाता है। नाउ दीज आर ऑल दीज टाइप, एक हो गया आपका, कहाँ है यहाँ, डेट एंड डेट, डेटा टाइप में कॉलम टाइप हो गया, लिटरल्स हो गया जो स्ट्रिंग से वो लिटरल्स में आता है, नल टाइप इफ यू मेंशन नल, एंड देन कॉम्प्लेक्स टाइप। तो हमने कॉम्प्लेक्स डेटा अभी देखा नहीं, तो विल सी कॉम्प्लेक्स। ये जो है ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप मेक्स एसक्यूएल एंड हाइव अलग अलग, they both are different from here. कॉम्प्लेक्स में आता है ए array, 2 is map, reduce only map, मैपिंग हो गया, 3 में आता है struct, and then it's union। ठीक है, नाउ विल सी दी डेफिनेशन क्या है और ये कैसा होता है। So array is nothing but, if anybody has learned any language, we know what is array. Array is an ordered collection of something, something in an ordered collection of fields, and they must contain same data type। ठीक है, बस ये एक array का definition समझ लो, an ordered collection of fields, same data type, same data type का रहेगा। So and it will be like this।
something like this. This is an array. समझ में आया ना क्या है array? An ordered collection of fields. So ordered collection of anything can be there. So that is how the pair is made. So कुछ भी ordered way में रहेगा, array लगा के you can make it an array of names like my name or anyone's name. तो उसका एक array बना लिया. तो वो है like multiple चीज but same data type रहना. Either it should be a string, a numerical, date and time, whatever it is. Okay. Map. So map से we understand that we are mapping one thing to another thing. So mapping is nothing but key value pairs. It is nothing but a key value pair. So it will be it is an unordered collection of key values. Keys must be primitive type, that is numerical types, or primitive complex type में नहीं रहना चाहिए, because map itself is a complex type of complex data type of Hive. So an unordered collection of key value pairs. Keys must be of primitive values, and the data or the values can be of any type. Keys will be primitive, values can be any type. For a particular map, the key must be of the same type. So जो keys रहेंगे वो primitive रहेंगे और same type के keys रहेंगे. ठीक है. So example of map का example है कुछ ऐसा. जैसे we can write so the key is mango and the value of the mango is 50 rupees per kg. Apple 120 rupees per kg. So this is what a key looks like and a value looks like. Key can be anything, value key should be of the primitive type and same data type. Okay, ये हो गया map. Then we'll come to struct and then we'll go to union. सर यहाँ पे कुछ ये होंगे ना मैप फंक्शन में करली ब्रेसेस वगैरह, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा ना फिर. नहीं ऐसे ही रहेगा, वो डिफरेंशिएट कर लेगा. अच्छा इधर मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मैप के कोड जब हम लोग करेंगे तब देखेंगे, बट ऐसे ही रहेगा. वो सिस्टम डिफरेंशिएट कर लेगा उसको. ओके ओके ठीक है. स्ट्रक्चर में बता दूंगा. Now we'll talk about struct. So struct is a collection of named fields. Okay, struct में कुछ भी डाल सकते हो, any data type, कुछ भी. ठीक है, you can type anything inside this struct. And then union is a value that may be one or another defined in the data. बताता हूँ मैं example के साथ. Like पहले struct कर लेते चलो. Collection of तो मैंने पहले कैरेक्टर डाला स्ट्रिंग टाइप, फिर मैं डाल रहा हूँ फ्लोट और डेसिमल टाइप. डेटा हो गया. देन आई कैन आल्सो यूज दिस.
then I can also type column A, then again column 2, one, so something like this. ऐसे ऐसे करके हम लोग struct define करते हैं, ठीक है. Struct can be like, it's a very cool thing. I'll show you. इसमें मतलब ये चीज SQL में possible नहीं है, ठीक है. Struct, and then we have union. Union के example like इसमें भी सारे डेटा टाइप आ जाएंगे, ठीक है. और इंडेक्सिंग कर सकते हैं इसको, इसलिए यूनियन यूज करते हैं. तो इसमें भी हम लोग तीनों डेटा टाइप दे सकते हैं. हर टाइप का डेटा टाइप वी कैन डिफाइन. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन हाइव, ठीक है. अब विल कम टू टाइप्स ऑफ टेबल. So there are two kinds of table. One is internal, the other one is external. Internal table ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है. मतलब 90% ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आएगा, तो उसको स्टार 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 कर लो. व्हाट इज इंटरनल टेबल, व्हाट इज एक्सटर्नल. अगर हाइव से रिलेटेड उनका कुछ भी काम है तो वो जरूर पूछेंगे कि इंटरनल टेबल क्या है, एक्सटर्नल टेबल क्या है. इंटरनल टेबल क्या है? इंटरनल टेबल मींस, from the name you can understand, internal means something internal to hive. So it is managed by hive, and by default the data is stored in hive database, okay, or the hive warehouse. External table ulta hai, it is not managed by hive. If you delete an internal table, everything is deleted. If you delete an external table, so if you delete an external table, then your table is deleted but your data is not deleted, okay. Your table is deleted but your data is not deleted. So ये है hive, ये components है. So ये पूरा hive का आर्किटेक्चर है,
इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। तो हाइव की जो आर्किटेक्चर है वो सबसे पहले नीचे में जो है, इस सबसे नीचे में आएगा HDFS, और हाइव किसके ऊपर बना हुआ है, मैप रेड्यूस के। तो ये सीक्वल के जो क्वेरीज है उसको मैप रेड्यूस में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके ये रन करता है। तो एंड ऑफ द डे मैप रेड्यूस चल ही रहा है। यू इज अ क्वेरी राइटर, क्यूबलो इज ऑल्सो अ क्वेरी राइटर, ये भी एक क्वेरी राइटर है, ये भी अदर्स में भी बहुत अलग अलग है क्वेरी राइटर। ठीक है, आप यू में क्वेरी लिख के यू कैन रन इट, इट विल रन हाइव एंड देन मैप रेड्यूस प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, हाइव इसलिए आया बिकॉज मैप रेड्यूस कोड करना वाज नॉट एन इजी जॉब। ठीक है, जावा में कोई चीज कोड करना इज नॉट एक्चुअली इजी जॉब, इट्स नॉट एन इजी थिंग। ठीक है, इसलिए हाइव आया कि जिसको बिग डेटा का, जिसको जावा नहीं आता है, हाउ विल ही यूज बिग डेटा, उसको सिर्फ एसक्यूएल आता है। तो उन लोगों के लिए हाइव इज द बेस्ट थिंग। they can use Hive query to still analyze the data, analyze big data, not small data, big chunks of data. तो ये JDBC एंड ODBC हो गया, ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा डेटाबेसेस से, वहां से वहां से जो डेटा है वो पुल होगा। पुल होने के बाद सेम थिंग जैसे हाइव और स्कूप का है, स्कूप में भी JDBC ODBC डालना पड़ता है हमें, वो डेटा से कनेक्ट होगा एंड यू कैन डायरेक्टली पुट योर डेटा इनटू हाइव एंड टेबल विल बी क्रिएटेड। else you can store the data in CSV format or any encrypted format like Avro, Parquet and Sequence, and then you can play around with the data in Hive. Limitations of Hive हमने कर लिया है कि does not provide row level updates, earlier versions, not suitable for OLTP, query have higher latency, startup overhead for MapReduce job, best when large data set is maintained in and mined. So ये small data set के लिए नहीं है, because ये क्या कर रहा है, ये Hive query को MapReduce कोड में convert करके then it's running a MapReduce thing, तो that is taking time, so higher latency है। तो अभी जैसे हमने डेटा टाइप चेक किया, टाइनी, स्मॉल, इंट, बिग इंट, फ्लोट, डबल, डेसिमल, न्यूमेरिक में आते हैं। डेट एंड टाइप में टाइम स्टैम्प और डेट है, और इंटरवल भी है। स्ट्रिंग, वैरचर और कैरेक्टर है। मिसलेनियस में बुलियन, बाइनरी। फिर कॉम्प्लेक्स में एरे, मैप, स्ट्रक्ट, यूनियन। ठीक है, अब हम लोग टेबल्स के बारे में पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल टेबल एंड इंटरनल टेबल। सो लेट्स गो टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मैनेज टेबल, हाँ ये है। So manage table, or also known as AKA, also known as internal table. The whole life cycle of this table is maintained by Hive. Data is stored in Hive warehouse directory. ठीक है, dropping the table deletes data from the warehouse. Whereas external table, life is not managed by Hive. Hive assumes that it does not own the data. So dropping the table or deleting the table does not mean deleting the underlying data. Metadata will be deleted. So temporary data whichever is created वो delete होगा, but your data will not be deleted. For example, I have a set of data, some Aadhaar card data which I want to analyze कि कितने लोग वेस्ट बंगाल से belong करते हैं, या whatever I want to analyze, I will do the analysis. But I want to now, once my analysis is done, I want to delete that data or I want to delete that table. So अगर तो इस वजह, but I don't want the data to be deleted. टेबल चला जाए बट मेरा डेटा रहना चाहिए। सो इन दैट केस वी विल ऑलवेज क्रिएट एन एक्सटर्नल टेबल, सो दैट वी विल, once we delete the external table, we will not delete the data. ठीक है, now we'll see how to create a table. So to create a table, we'll just create the table just like we do it in our SQL. So create table and then employees name or the employee table or whatever name of the table you want to give. ठीक है, so employees name string because it's a string type. Salary float कर दो because if you want to put decimals, अगर decimal नहीं लगाओगे then you can keep it as normal. Int, then subordinates, ये
एरे अगर इफ यू आर पासिंग एरे देन इट विल बी लाइक दिस, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में. So this is array, this is how you denote arrays. Then map type will be in curly braces and semicolon divided. So map और उसका की बनेगा जो आप पूछ रहे थे अंकित, ठीक है, ऐसे करके डिफाइन करेंगे. पहले कर्ली ब्रेस, पहले मैप लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में we will have whatever we have and then we have the value. So first we have the key and then we have the value. Now struct type, struct type ऐसे रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहेगा हमारा एक पार्ट, then semicolon, then दूसरा पार्ट, then तीसरा पार्ट. like we have an address, so address में street number, city, state, zip code. मुझे अगर सब अलग अलग चाहिए I can create a struct. ये सेम एड्रेस है, instead of this being a string I will make it a struct where I can find everything. उसके बाद देखो सिटी को, सिटी के लिए मैंने अलग सिटी एंड एवरीथिंग अलग से डिफाइन किया हुआ है और उसका डेटा टाइप अलग दिया हुआ है. सो सिटी जो है उसका स्ट्रिंग टाइप है, स्ट्रीट जो है स्ट्रिंग है, स्टेट स्ट्रिंग है, जिप जो है इंट करके दिया हुआ है. So this is how you define it and this is how the input data will look like. Now auth union fbid int gid int and email is string. तो वैसे रहेगा ऊपर में जैसे लिखा हुआ है इनपुट डेटा. तो एक इंट है, फिर gid भी इंट है, उसके बाद ईमेल है, ठीक है. फिर मेटा स्टोर stores the metadata of the table into a relational database. Metadata includes detailed informations of the databases and the table. तो टेबल का पूरा इंफॉर्मेशन और कौन से डेटाबेस में बना हुआ है ये है metadata of a table in Hive. टेबल डेफिनेशन, नेम ऑफ द टेबल, कॉलम्स, पार्टीशंस जो भी दिया हुआ है वो स्पेसिफिकेशन भी a kind of metadata है. So information about the data, information about the table is what is metadata for Hive. So Hive tables are stored in Hive warehouse. तो डायरेक्टरी जो यहाँ दिया हुआ वो नहीं रहेगा, there is a different directory. वो वहां जाके Hive warehouse बोल के एक डायरेक्टरी हमने बनाया था when we created और when we installed Hive. क्लाउडेरा में भी वैसे ही एक डायरेक्टरी होगा हाइव के अंदर में वेयरहाउस नाम से. क्लाउडेरा यूजर क्लाउडेरा समवेयर लोकेशन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट एक हाइव होगा और हाइव के अंदर में ही वेयरहाउस बोल के एक होगा, उसके अंदर में डेटा सेव होगा एट द लोकेशन स्पेसिफाइड इन द टेबल डेफिनेशन. तो जहां भी टेबल का हम लोग डायरेक्टरी टारगेट डायरेक्टरी देंगे वो वहां पे जाके सेव हो जाएगा. So getting started with command line. So similarly as we do it on SQL, we will again will have an option to do it on Hive. So Hive will be like this. You can type show table. So as we can do, so create database Abhinav 9884, describe database, drop the database. You have created a database, you have described it, and then you have deleted it. Okay, so create database, use the database, create table, ठीक है. So now we'll talk about manage table and external table. हमने बात कर लिया मैनेज टेबल के पूरे राइट्स जो होते हैं वो होते हैं हाइव के पास. एक्सटर्नल टेबल और मैनेज टेबल आल्सो नोन एज इंटरनल टेबल. एक्सटर्नल टेबल के जो पूरे राइट्स होते हैं वो हाइव के पास नहीं होते हैं. We will drop the table, we still have the data in internal table. If we delete it, we delete the data too. So एक टेबल कैसे क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा है, ठीक है. नाउ इस डेटा पे हमें क्रिएट करना है एक टेबल, एक टेबल क्रिएट करना है. तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है जिसमें पहला जो चीज है ऐसे लिख सकते हैं हम लोग.
सो पहले एक्सचेंज वैल्यू, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज है तो एक्सचेंज वैल्यू इसको 70 पकड़ लो, ठीक है। सिंबल, सिंबल मान लो कनाडा का है तो सीए लगा दो, ठीक है। ईयर मंथ डेट है तो ईयर मंथ जो भी लगा दो, ईयर 2020, ईयर मंथ हो गया 6, डेट हो गया आज, क्या डेट है 11। सो कोई स्टॉक है जिसका प्राइस ओपन हुआ था 100 पे, ठीक है, लोवेस्ट प्राइस गया 50 एंड नहीं ओपन, उसके बाद हाई है, हाई गया 200, लो गया 50 एंड क्लोज हुआ 120 पे, ठीक है। वॉल्यूम कितना बिका, कितना आया, कितना नहीं, 1000 पकड़ लो, ठीक है। प्राइस एडजस्टेड, तो अगर कुछ पॉइंट वन में रहेगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो क्या, हमने क्लोजिंग वैल्यू कितना 120 डाला, चलो 120, 120.36, कुछ ऐसा। एंड देन विल राइट रो फॉर्मेट डिलिमिटेड fields terminated by T. So this is how you will create a managed table or internal table. Then you can write describe NYSE अगर table बन गया तो, and then describe format. Okay. Now this is how you will create a table in HDFS. Similar way you will have to load, यहाँ पे जो डेटा है हम लोड करेंगे, ये सब मैं कल बताऊंगा प्रैक्टिकल कैसे करना है, हडूप में डेटा कैसे लोड होगा, एंड देन हाउ विल सी द डेटा। एक्सटर्नल टेबल S3 से कैसे बनाना है, सो सी हाइव में भी हम लोग वैसे ही सारा काम करेंगे जैसे हम लोग एसक्यूएल में करते हैं, सेम शो डेटाबेसेस, यूज डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस डेटाबेस एंड डेटा एंड सी, सेलेक्ट ओनली रिक्वायर्ड, तो अगर एक्सचेंज रेट और सिंबल चाहिए तो बस वही लेंगे, ठीक है। फाइंड एवरेज, तो सिंबल एंड देन एवरेज, ओपन प्राइस का एवरेज निकाल के भी एज एवरेज प्राइस लगा के हम लोग विल डू इट, ओके। फिर लोकल सिस्टम से हम लोग कैसे उसको वापस अपने ये में लेंगे, क्या बोलते हैं, वेयर हाउस में बनाएंगे उसको, ठीक है। फिर सेव कैसे करेंगे अपने पूरे डेटा को, अगर या फिर टारगेट डायरेक्टरी दे दो वहां पे जाके चला जाएगा, अगर नहीं देना है तो व्यू कर लो, तो वंस द व्यू इज डन ऑटोमेटिकली, लाइक एसक्यूएल में हम लोग व्यू बनाते हैं तो ऑटो वो टेम्परेरी टेबल टाइप होता है, तो अगर व्यू हम डिलीट कर देते हो तो वो डेटा भी चला जाए, मतलब डेटा नहीं, अगर मैनेज टेबल है तो डेटा जाएगा, डेटा चला जाएगा, एक्सटर्नल टेबल है तो डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ दीज आर सेम डीडीएल कमांड, ऑल्टर एंड ऑल, ठीक है। फिर पार्टीशंस एंड बकेटिंग, पार्टीशन एंड बकेटिंग ये सब हम लोग बाद में करेंगे, पॉकेट कल करेंगे सारा, ये सब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो कैन एनी वन जस्ट क्रिएट अ टेबल, ओके, ये एग्जांपल रहेगा टेबल का, और एल्स क्रिएट अ डेटा समथिंग, ऐसा ऐसा कोई डेटा बनाओ, ठीक है, अपने 1.2 में या क्लाउड एरा में,
1 comma a 2 comma 2 comma b 3 comma c. ठीक है, make this kind of data in your Cloudera and then create a go to your Hive shell. So Hive shell में जाने का ये टर्मिनल खोलो, open terminal, type Hive and then you will see your Hive shell. ठीक है, ऐसे. Then you will have to create a table with id and id will be int, name will be string. Then you will write row format deleted. तो मैं एक बना रहा हूँ, बताओ मुझे ये बना क्या. So here your create table command will end. Okay, so please create a table. And once the table is created, तो ये हो गया schema on read. यहाँ पे हमने टेबल पहले क्रिएट कर लिया है, डेटा का कोई आता पता नहीं है. देन we'll have to load data. तो लोड डेटा करने के लिए load data path दे दो. Alright, so we are loading the data now. So load data in path, you provide the location. Overwrite, if there is anything already written, just overwrite or rewrite it. Into person. तो person क्या है, मेरा टेबल का नाम person है, तो इसलिए मैंने वहाँ person डाल दिया. ठीक है, so please create this. कल का क्लास थोड़ा आज इतना ही करते हैं, कल का क्लास प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग पूरा. We'll create manage table, we'll create external internal table, we'll use union struct and even
क्या क्या बोल दिया, मैप, यूनियन, एरे, स्ट्रक्ट सब यूज करेंगे। तो ये वाला जो है मैं अभी भेज दे रहा हूँ। सर वो क्वेरी भेजना जरा एक बार चैट पे। भेज रहा हूँ। देखो बैक, अरे कहाँ तक सर, क्या इसमें, ये तो पूरा ही चला गया। एक सेकंड। सब सेंट इट, ठीक है। तो पहले डेटा क्रिएट करो, डेटा क्रिएट करने के बाद टेबल बनाओ एंड ट्राई टू रन दिस एंड लोड करो उस पर डेटा। एंड देन पाथ में जाके चेक करो कि वो डेटा वहाँ वो टेबल है या नहीं है, या वो डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो आज इतने ही करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को पिंग करो। कल थोड़ा क्लास लंबा चल सकता है, 2.5 hours, बिकॉज कल आई एम प्लानिंग टू फिनिश हाई। तो लेट्स सी, कल खत्म हो जाएगा हाई, तो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है कल। हेलो यस। सर, वो जो आपने बोला है डेटा पहले बनाना है, वो टेक्स्ट फाइल देने के लिए बनाना है क्या? हाँ, टेक्स्ट फाइल उसको आप ऐसे बना लो ना, कैट करके मतलब बना लो। नैनो या टच यूज करके हाँ, कुछ कुछ फाइल भी कुछ भी क्रिएट करके, करना है। एक टच करके आप पहले फाइल बना लो, फाइल के अंदर डेटा डाल दो कुछ भी, ठीक है। फिर क्रिएट टेबल करके ये सारे डाल दो, रो फॉर्मेट डिलिमिटेड, फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय दिस, स्टोर्ड एज टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल डाल दो, और कोई टाइप का फाइल रहेगा तो वो डाल देना। फिर लोड डेटा इन पाथ, लोकेशन डाल दो एंड ओवरराइट कर दो। हाँ, सर और वो सर वो कहीं पे भी अगर स्टोर किया मैंने मेरे इसमें नहीं, या उबंटू ये उसमें, आपको हाडूप हाडूप पे करना पड़ेगा ना। नहीं वो जो है ऊपर वाला टेक्स्ट वो कहीं पे भी लोड कर किया तो चलेगा, हाँ चलेगा ना, कहीं पे मतलब अपने उबंटू लोकल पे या, सिस्टम पे। नहीं अपने सिस्टम पे नहीं, इन योर वीएम हाँ वही सिस्टम। उबंटू लोकल सिस्टम। हाँ कहीं भी कहीं भी, डेस्कटॉप पे कर लो, ओके सर। ठीक है, डेस्कटॉप पे कर लो, करके मुझे पिंग कर देना, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ सर, वो जो आपने लास्ट लाइन लिखी है ना हम्म, लोड वाली, हम्म, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हमने लोकल सिस्टम पे जो फाइल बनाई है उसको एबीसी, हम लोग, मतलब जो हमारा हाँ डेटा जो हाँ है, हाँ, उसको क्या कर रहे हैं हम? हम लोग उसको लोड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग एसक्यूएल में इंसर्ट इनटू करते हैं ना, हम्म। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं एक टेबल पे, तब ना टेबल हम्म। बनेगा। तो यहाँ हाँ। पे वो हो गया स्कीमा ऑन राइट, क्योंकि अच्छा। हम पहले इन मतलब पहले हम टेबल बनाते हैं, दोनों में टेबल पहले बन रहा है, बट इन हम्म। हाइव के केस पे डेटा ऑलरेडी है हमारे, वहां पे हमारे पास डेटा आ रहा है, इसीलिए उसको ओएलटीपी बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। बिकॉज डेटा आ रहा है, वो इंसर्ट हो रहा है, आ रहा है, जैसे एक कोई वेबसाइट पकड़ लो, ठीक है। So whenever you create something in a website or your account, you'll have to provide the details like your name, your address, या फिर फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब देना पड़ता है ना। तो हम्म। वो क्या कर रहे हैं, हम लोग इंसर्ट इनटू कर रहे हैं, डेटाबेस में इंसर्ट तो हो रहा है वो सारा डेटा, फेक हम्म। तो रहा नहीं होगा, कंपनी नेम पता एड्रेस कुछ भी है, सिक्योरिटी क्वेश्चन हम्म। एंड ऑल, वो स्टोर हो रहा है। हम्म। तो वो इंसर्ट इनटू हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं उसी डेटा को ऑलरेडी पुल कर लिया हूँ, ठीक है, सेम हम्म। डेटा को मैं पुल करके रखा हूँ एक जगह सीएसवी फाइल में, तो वो डेटा मेरे हाँ। पास ऑलरेडी है। हाँ। मुझे डेटा खोल के देखना है कि डेटा में कहाँ क्या है, मतलब अगर ये मेरा डेटा है, ठीक है, हम्म। अब मुझे एक टेबल में डालना है, तो आई नो वन जो है वो इंटीजर है, ए जो है स्ट्रिंग है, करेक्ट। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सुजीत डाल देता हूँ तो ये कैरेक्टर हो गया, हम्म। स्ट्रिंग भी हो गया, दोनों है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लगा दिया तो स्ट्रिंग हो गया, और कैरेक्टर भी बना सकते हैं, इसको बैरकर कर देंगे हम। इट्स अप टू मी, हाँ। मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से हम टेबल बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मुझे मैंने एक टेबल बनाया पर्सन, जिसमें मैंने आईडी को इंट बनाया, नेम को स्ट्रिंग बना दिया, तो ए है इसलिए हम्म। स्ट्रिंग बना दिया। तो डेटा देखने के बाद ही हम टेबल बनाएंगे, विदाउट सीइंग द डेटा हम टेबल नहीं बना सकते हाइव में। टेबल तो हमें देखना ही पड़ेगा, मतलब डेटा तो हमें देखना ही पड़ेगा। और ये सवाल भी मत पूछना कि डेटा अगर हम नहीं देखे तो,
नहीं देखोगे तो नहीं तुम नहीं टेबल वो नहीं। बना ही नहीं सकता। नहीं ये मेरा ये सवाल मैंने किया था अपने ट्रेनर से नहीं, कि मेरा अगर क्वेश्चन ये था सर कि हाँ जो हमारा डेटा, मतलब अभी तो ये छोटी फाइल है, ये हम खुद बना रहे हैं तो लोकल में हाँ बना हाँ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। हाँ हाँ लेकिन अभी ट्विटर का डेटा आ रहा है, सपोज स्टैग्नेंट हाँ डेटा है, मान लीजिए एक ठीक साल है पुराना डेटा है, लेकिन हाँ वो तो हाँ हडूप के एचडीएफएस के अंदर है ना? हाँ है तब कैसे चढ़ाएंगे हम इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर? तब इसमें भी भी फिर से हमको लोड डेटा ही हाँ, करना पड़ेगा। लोड डेटा अच्छा उसमें इन फिर पाथ है तो एक होता है लोड डेट, ये इन पाथ एक लोकल है, मैं बताता हूँ कहाँ है वो पीडीएफ फाइल। ये जो है ये देखो ये लोकल में मैंने डाला, कॉपी टू लोकल, हम्म, हाइव में डाल हम्म, के ये डेटा का फाइल नेम रहेगा। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग कि ये किसी और का है। ठीक है, मैं बता रहा हम्म, हूँ कि फंडा क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ जो हमने डेटा लोड कैसे करना है, हडूप एफएस कॉपी टू लोकल, पहले हमने लोकल में कॉपी कर ली ये, उसके बाद लॉन्च हाइव यूज योर डेटाबेस लोड डेटा लोकल, यहाँ हमने लोकल हम्म, डाला, ये हमारे लोकल सिस्टम पे है ये डेटा। ठीक है, अच्छा, लोकल मतलब इन योर डेस्कटॉप, नॉट इन एच डी यस एफ एस। यस, ठीक है, इन योर डेस्कटॉप वाला मतलब डेस्कटॉप इन द सेंस वो वीएम में है बस। ठीक है, एच डी एफ एस में नहीं है। तो लोड डेटा लोकल इन पाथ आएगा। ठीक है, वहीं अगर एच डी एफ एस से हम लोग लोड कर रहे हैं, लोड डेटा इन पाथ एंड देन एच डी एफ एस का लोकेशन जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये लोकेशन वैसे जाएगा। एक्सटर्नल टेबल में जो हम करेंगे, यहाँ देखो लोकेशन हम लोग डायरेक्टली दे सकते हैं, डायरेक्ट लोकेशन दे दो बस। तुमको मतलब टेबल तुम्हारा लाइक यू द मोमेंट यू क्रिएट योर टेबल योर डेटा इज ऑल्सो इंसर्टेड इन द टेबल। तो उसके बाद डायरेक्ट सेलेक्ट मारो, खत्म, योर डेटा इज रेडी, यू कैन प्ले अराउंड विद द डेटा। S3 में भी कर सकते हैं एंड देन यू कैन रन दिस स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम NYSE। मैं देखता हूँ ये डेटा अगर मुझे मिलता है तो हम अपन इसी डेटा पे काम करते हैं। हाँ, एक रियल मतलब ऐसे बड़ा डेटा में करते थे सर, जरा समझ बड़ा में भी डेटा आता लाइक है। 100-150 चलेगा। हम्म, सर्च करता हूँ मैं, क्रैगल पे मिल जाएगा मुझे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। हम्म, तो उसी में हम लोग इंटरनल टेबल बनाएंगे, एक्सटर्नल बनाएंगे, टेबल ड्रॉप करेंगे, क्रिएट करेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे कल। बट वही सब लोग ये डाउनलोड कर लो क्लाउडेरा। ठीक है, हम्म, क्लाउडेरा वीएम इंस्टॉल कर लो, वो ऐसा है। हेलो हाँ सर, और एक बात पूछनी थी तो कि हाइव में डेटा सर स्टोर होगा क्या? हाँ, मेटा डेटा स्टोर होता है, डेटा तो एचडीएफएस में जाएगा ना, स्टोरेज तो एचडीएफएस में ही एचडीएफ। रहेगा। हाइव हाँ हाइव में सिर्फ प्रोसेस होगा डेटा। हाँ, बस वो वही तो बोला ना, इट इज नॉट अ रिलेशनल डेटाबेस, इट इज जस्ट अ इज अ डेटा वेयर वेयर हाउस। हाउस बस। वहां लाओ, काम करो, घर जाओ, खत्म। वो कोई मतलब नहीं है डेटा से, वो बस मेटा डेटा रखेगा, स्कीमास रखेगा, और अगर इंटरनल टेबल है तो रखेगा, एक्सटर्नल टेबल है तो वो भी नहीं रखेगा, वो वाला टेम्परेरी रखेगा। फिर जब इंटरनल टेबल इन टर्म्स ऑफ सर, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल टेबल इज लाइक एवरीथिंग, लाइक वो पूरा टोटल हाइव मैनेज करता है। ठीक है, वो हाइव ओन करता है उस टेबल को, उस डेटा को हाइव ओन करता है, तो वो इंटरनल टेबल हो गया। और मैनेज टेबल, दो नाम है एक ही चीज के, मैनेज टेबल ऑल्सो नोन एज इंटरनल टेबल। तो इसका ओनरशिप जो है वो हाइव के पास होता है। तो अगर आप टेबल ड्रॉप करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू क्रिएटेड अ टेबल टू चेक सम XYZ थिंग। ठीक है, यू चेक द टेबल, आपने वो डेटा पे काम कर लिया है, अब आपने इंटरनल टेबल बनाया था। ठीक है, और वो डेटा आपके किसी काम का है भी नहीं। तो जब डेटा किसी काम का नहीं रहेगा तो आप इंटरनल टेबल बनाओ, टेबल को ड्रॉप करो, डेटा भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यू डोंट हैव टू गो एंड डिलीट इट अगेन, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर अगर आपका डेटा यूजफुल है, लाइक यू वांट टू एनालाइज द बहुत बड़ा चंक ऑफ डेटा, यू डोंट वांट टू डिलीट द डेटा, यू जस्ट वांट टू चेक समथिंग and also keep the data for further analysis. In that case we will create an external table so that हमारा अगर टेबल ड्रॉप भी हो जाता है, हमारा डेटा नहीं ड्रॉप होगा। किसी का पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन है, वुड यू लाइक टू ड्रॉप दैट और डिलीट दैट डेटा? नो राइट, वो इम्पोर्टेंट डेटा है। एंड इफ यू हैव अ स्कूल डेटाबेस, और कोई स्कूल का डेटाबेस है जिसमें लास्ट मंथ का ये पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, रूटीन पड़ा हुआ है, विच इज यूजलेस, कोई काम का नहीं है। अगर चला भी जाएगा तो बिकॉज वो लास्ट वीक का है, हमने एनालिसिस कर लिया कि किस टीचर ने कितने क्लासेस लिए, कितना पैसा बनता है, एवरीथिंग, एंड देन डन।
तो फिर डेटा डिलीट हो गया, एनालाइज कर लिया हमने, रिपोर्ट भेज दिया एंड देन खत्म, हमने डेटा डिलीट कर दिया, कोई मतलब नहीं है उस डेटा से। बट किसी का पैन कार्ड का डेटा है, पासपोर्ट डेटा, वी कांट डिलीट दोज डेटा, सो वी विल कीप दोज डेटा एंड विल क्रिएट एक्सटर्नल फाइल। तो ये हो गया क्लाउडेरा। क्लाउडेरा यहाँ पे रहेगा, क्लाउडेरा को ऑन नहीं करूंगा, इट विल टेक लाइक 15 मिनट्स नाउ टू जस्ट टर्न इट ऑन। सो क्लाउडेरा में कल हम लोग काम करेंगे, सब लोग डाउनलोड करके क्लाउडेरा वीएम इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और कल से हम लोग क्लाउडेरा पे काम करेंगे एंड देन विल डू फर्दर इंस्टॉलेशन ऑफ पिग एंड एचबीएस, दैट्स इट। तो वो एडमिन में एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंस्टॉलेशन का इन योर लोकल सिस्टम। एंड फिर एक दिन हम लोग करेंगे एडब्ल्यूएस पे, हम लोग ये बनाएंगे सिंगल नोड, लाइक मैंने बनाऊंगा, आई विल टेल यू ऑल, क्रिएट क्रिएट एन एडब्ल्यूएस अकाउंट, अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन दो, दे विल डिडक्ट ₹1 एंड देन दे विल गिव यू 1 ईयर फ्री अकाउंट। तो 1 ईयर का फ्री अकाउंट में वी कैन क्रिएट एटलीस्ट, वी कैन क्रिएट वन सिंगल नोड, ओके। विल क्रिएट, लाइक आई विल टेल यू, you have the document, you will create it, I will not create, and you will let me know. Then after hive मैं try करूंगा कल खत्म कर देने का, hive खत्म हो गया, then we'll go to yarn and mapreduce and then pig hbase, ठीक है। तो मैं कल सबको डाउनलोड कर लेना क्लाउडेरा, कल हम लोग मोस्टली प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। सर ये जो अपना AWS होता है उसमें हम ये नहीं कर क्या बोलते हैं, क्लाउडेरा वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते क्या उसमें? क्लाउडेरा उस पर कैसे करेंगे, वो आपको एक विंडोज सिस्टम दे सकता है, विंडोज सर्वर देगा, उबंटू देगा, रेड हैट देगा। सर अगर वो उस पर करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा पैसे। हाँ वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, अच्छा क्योंकि AWS कमाता कैसे है, दे चार्ज यू जितने देर आपका लैपटॉप चालू है या जितने देर आपका वर्चुअल सिस्टम चालू है उतने देर का चार्ज। तो इट इज लाइक 1 ईयर फ्री और 720 आवर्स। तो अगर मान लो आपने एक सिस्टम बनाया उबंटू का या किसी भी XYZ सिस्टम बनाया एंड यू डू नॉट टर्न इट ऑफ, खत्म, 720 घंटे होने के बाद दे विल स्टार्ट चार्जिंग यू। वो उसका भी लेंगे सर, और वो अगर आपने ज्यादा स्टोरेज या फिर रैम यूज कर लिया ज्यादा। नहीं, अगर हम लोग नहीं यूज कर रहे, हम लोग सब फ्री यूज कर रहे हैं, 8 GB रैम फ्री में मिलता है, डुअल कोर का प्रोसेसर फ्री में मिल जाता है, कुछ 40 GB का हार्ड ड्राइव स्टोरेज भी मिलता है फ्री में। तो हम लोग सारा फ्री में भी यूज करेंगे ना, बट स्टिल वो मशीन ऑन रखने का चार्ज ले लो, ठीक है। क्योंकि मुझे बिल आ चुका है सर, 300 रुपए का बिल आ गया था मुझे एक बार, मैं भूल गया था एंड देन आई फॉरगॉट कि 720 आवर्स हो गए थे, 1.5-2 महीने बाद मेरे को मेल आ रहा है, देन आई टोल्ड देम, सो आई वाज वर्किंग विद Amazon, आई पता नहीं था, तो मेरा तो काम हो गया इंटरनली। बट या बी अवेयर ऑफ दिस, टर्न ऑफ योर सिस्टम, आई विल शो एवरीथिंग हाउ टू डू इट, टर्न ऑफ कर देना, मजा आएगा। तो AWS में अकाउंट क्रिएट कर लो, प्रॉब्लम इस वीक नहीं, बिकॉज वो टाइम टेकिंग चीज है, ठीक है, इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब, वो आपको मेल करना पड़ेगा, वो अप्रूवल देंगे तब जाके होता है, वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो टाइम टेकिंग जॉब, उसमें 2-3 दिन लग जाता कभी कभी उनका रिप्लाई आने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये नोट्स मैं डाल ही देता हूँ इधर, चैट पे डाल देता हूँ। अरे इससे ज्यादा नहीं आएगा क्या? अरे छोड़ो, मैं इसको ये कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ फिलहाल। सर आपने जो लोड वाली क्वेरी दी है ना अभी, हाँ वो गलत है। वो उसमें बोल रहा है वो HDFS में चाहिए उसको। हाँ तो लोड डेटा हम्म, बताया तो अभी थोड़ी देर पहले। हाँ हाँ नहीं, इसलिए तो मैं बोला कि वो क्वेरी अभी चलेगा नहीं 100%, हम्म, वो जस्ट शो करने के लिए कि टेबल ऐसे बनता है, हम्म, इतना कुछ लिखना पड़ता है तब जाके टेबल बनेगा। एंड देन लोड डेटा लोकल, एंड देन इन पाथ में यू हैव टू प्रोवाइड द लोकेशन, ठीक है। कल हम लोग काम करेंगे, अभी मैं VM ऑन करूंगा तो
थोड़ा वीएम में को काम करना पड़ेगा अभी, तो वीएम अभी सेटअप नहीं है, इसलिए मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ। कल हम लोग बैठ के करेंगे पूरा प्रैक्टिकल। कल कोई थ्योरी मतलब 0% या 10% थ्योरी होगा, बाकी कल प्रैक्टिकल है। सो सब कोई ये कर ले, इंस्टॉल कर लो बस क्लाउडेरा को, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट एवरीवन।